For now, let's bring in Christine Fair. She is an expert on South Asia politics and teaches security studies at Georgetown University. Thank you so much for joining us. Well, thank you for having me. So, how surprised were you to find out in that CNN interview with Pakistan's Prime Minister that not only did President Biden not call him since the collapse of the Afghan government and the withdrawal of US troops, but they haven't spoken to each other at all since Biden took office? I mean, quite frankly, I think that's completely appropriate. Biden, when he was vice president, and I would say the Bush administration never quite understood that Pakistan was duplicitous, that it was taking money from us with, on the one hand, and giving it to the Taliban on the other. The Bush administration could never really wrap its head around that. But the Obama administration came in, there had been a series of assessments the entire summer before the election. The Obama administration had hired Bruce Riedel, who was a very well-known critic of Pakistan, to do the assessment of all of those assessments. So Biden came in as vice president along with President Obama with a pretty clear understanding that the reason why we were having so many problems in Afghanistan was actually because of Pakistan. So I'm not surprised that Biden had no interest in speaking with Prime Minister Khan. And there's another reason, too. He's actually not a relevant player in Pakistan. I mean, he's not even the mayor of Islamabad. For all intents and purposes, the persons that drive all of the policy that affect American interests. It's not the prime minister, it's the army chief, and it's the ISI chief, the intelligence chief. Right, and clearly that comes out in this, the sense of being shut out. In that interview, you do get that sense of bitterness over the relationship between Pakistan and the US. Prime Minister Khan says his country has suffered as a result of becoming an ally of the US. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इस वक्त जहां अदलिया शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है और सीनियर जजेस एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और दो जजेस की तरफ से चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को लिखे जाने वाले खतूत में जो हक़ाइक़ सामने आए हैं और जो हक़ाइक़ जो ऑडियो जो अपना जारी की गई है उसमें सामने आए हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो ज़रा मशकूक हो गए हैं। और इस वक्त होना तो ये चाहिए था कि जहां ये सब कुछ सामने आया वहां चीफ जस्टिस साहब को इस वक्त अलग हो जाना चाहिए था या कोई भी केस लेने से भी अलग हो जाना चाहिए था, मुतनाज़िर के केस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और नाज़रीन, इससे पहले इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ जितनी बदज़बानी, बद इखलाकी, बद तहज़ीबी की जो अब मिसालें कायम की वो अपनी जगह रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब मौलाना फजल रहमान ने दो अल्फाज बोले तो यूथियों को बड़ी तकलीफ़ हुई और पीटीआई वालों ने समाजी राब्तों की जो वेबसाइट्स हैं उन पर तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा मचा दिया और ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जो इंतहाई काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस है। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान ने जो कल का जो उनका खिताब था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा खिताब था, उसमें उन्होंने न सिर्फ अदलिया को बल्कि हमारे जो रियासती इदारे हैं यानी जर्नल्स को भी ललकारा और उनको भी कहा कि अगर सियासत करनी है तो ज़रा इस तरफ आ जाएं, सियासी मैदान में आ जाएं। नाज़रीन, अभी हम थोड़ा सा इस मामले पर बात करेंगे और आखिर में हम जो है फॉरेन फंडिंग के इसके हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है वो इस वक्त शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जहाँ जजेस आमने सामने हैं और अपना बार और बेंच में एक वाज़े एक खलीज पैदा हो चुकी है और जहां सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने इतना बड़ा एक लेटर जारी कर दिया हो, जहां सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजेस ने अपने एक खत लिख के और चीफ जस्टिस पे और चीफ जस्टिस के जो मामलात हैं उन पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया हो और जहां जारी होने वाली ऑडियो में
بہت سارے حقائق اور چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے ہوں، وہاں جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدائی میں کہا کہ اسی صورتحال میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو رضاکارانہ طور پر بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے تھا، یا رضاکارانہ طور پر جو نیکسٹ جو سینئر جج ہیں ان کو جو ہے وہ ریپلیس کرنے کے لیے کہہ دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور ایسی صورتحال میں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے عمران خان نے اپنا سارا وزن بھی چیف جسٹس کے کاندھوں پر رکھ دیا ہے۔ جہاں عمران خان کی طرف سے نیب ترمیمی بل کے خلاف دائر آئینی درخواست خود چیف جسٹس سن رہے ہیں، دوسری طرف وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی نااہلی کے خلاف جو ایک فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، ان پر جو نظر ثانی کی اپیل ہے وہ بھی یہی ہم خیال 3 رکنی بینچ سنے گا، اور اس کی سماعت 2 اگست کو رکھی گئی ہے، اور اس معاملے اس جو ہے وہ آئینی نظر ثانی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے 2 اگست کے لیے نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ نیب ترمیمی بل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اگر وزیر اعلیٰ سندھ کا معاملہ اسی طرح سنا جاتا ہے جس طرح 63A کا معاملہ سنا گیا، تو پھر ایک نیا پینڈورا باکس کھلے گا اور ایک نئے تضادات اٹھیں گے، اور اس وقت جو حکومت اور یعنی پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان جو تضادات موجود ہیں ان میں مزید شدت آ جائے گی اور وہ مزید شدید ہو جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں عدلیہ جو اس وقت اس کا ایک فرض بنتا ہے کہ اس ملک کو جو معاشی اور اقتصادی بحران درپیش ہے، جہاں ہم ڈالر کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، جہاں اگلے ماہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں مزید 28 روپے سے زیادہ بڑھنے جا رہی ہیں، جہاں آئے دن بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ میں ہوشربا اضافہ کیا جا رہا ہے، وہاں ایسے معاملات نہ دیکھے یا ایسے معاملات سے گریز کرے جس سے اس معاشی صورتحال ہے وہ مزید سنگین ہو۔ ناظرین، جیسا کہ ابتدائی میں نے کہا کہ جو ہے وہ پنجاب کے ضمنی انتخابات ہوں یا اس سے پہلے عمران خان کے جتنے بھی بڑے بڑے جلسے ہوئے، اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف زبان اور جو لب و لہجہ اور جو بد کلامی، بد زبانی، بد اخلاقی اور بد تہذیبی اور سے پیش آئے، جہاں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو انتہائی جو ہے وہ ایک گری ہوئی زبان استعمال کی، وہاں ان کو ایسے القاب سے بھی نوازا جو انتہائی قابل مذمت اور قابل ندامت ہیں۔ لیکن تب تو جو پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہوتے تھے وہ بڑا خوش ہوتے تھے، اور جو ہے وہ عمران خان کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ کے وہ پیش کرتے تھے۔ ناظرین، جب گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کو آئینہ دکھایا تو پی ٹی آئی کو اور جو یوتھیے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ یہ تکلیف اس وقت نہیں ہوئی جب خود عمران خان گالم گلوچ کر رہے تھے، اور ان کی جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے وہ جو ہے وہ ایک واہیات اور ایک غیر مہذب اور ایک غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہے تھے، تب کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ تو ناظرین، اس وقت جو ہے میں اس سے پہلے کہ اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں، آپ ذرا خود سن لیجئے کہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان صاحب کے بارے میں کیا بولا ہے۔ کسی کے حق میں اسی دفعے کے ایک آپ ریلیف دیں، ایک کو آپ سزا دیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ کون اس انصاف پہ اعتماد کرے گا؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت ملک کے اندر ہیں، لیکن میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم فتنے کے خلاف جنگ ہیں۔ اب اگر کوئی جج اس میں شریک ہوتا ہے، کوئی جنرل اس میں شریک ہوتا ہے، کوئی مولوی صاحب اس میں شریک ہوتا ہے، یہ سب فتنے کا حصہ ہے، اور جمعیت کے کارکنوں ڈٹ جاؤ۔ ان کے انہوں نے ایک اصطلاح بنائی، رجیم چینج۔ رجیم چینج کس کا ہے؟ ہمیں باہر کی سازشوں سے، تو باہر کی سازشیں تو نکل آئیں کہ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے کہاں کہاں سے پیسہ آیا تمہارے پاس، کس کس ملک نے پیسہ دیا، وہ تھا رجیم۔ آپ کو کون لایا ہے، اس پر تحقیقاتی کمیشن بیٹھنا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ بیرونی دنیا کا ایجنٹ کون ہے۔ ابھی امریکہ کے خلاف بولتا ہے، اس کو پتا ہے کہ پاکستان میں یہ چورن اچھا بکتا ہے، لیکن تمہیں تو لایا امریکہ تھا، تم تو ایجنٹ اسی کے تھے، یہود کے ایجنٹ، اس کی پشت پر قوت امریکہ کی،
आज पाकिस्तान में वो चूरन बेचने के लिए तुम भी अमेरिका के खिलाफ बोलते हो। और पता चल गया है कि जब तक तुम्हारे पास बनीगाला का घर नहीं था तो इस्लामाबाद की E7 के घर का किराया 9 साल तक अमेरिकी कौंसलेट अदा करता रहा है। तुम तो उनके घर में पल रहे हो, उनकी हवेली में पलते आ रहे हो। बहर रंगे के ख्वाही जामा में पोर्स मनंदाजे कदतरा में शनासम। तुम्हारे खमीर को हम जानते हैं, तुम्हारे खमीर के अंदर की खबासतों और गलाजतों को हम जानते हैं और इंशाअल्लाह इसका मुकाबला करेंगे। तो इस हवाले से मैं अपनी पूरी नाज़रीन, न सिर्फ इतना बल्कि मौलाना फजल रहमान ने जो है वो अपने खिताब में जुडिशरी को और जर्नल्स को भी आड़े हाथों लिया और खुल्लम खुला जो उन्होंने कहा वो आपने सुना होगा, एक बार खुद सुन लीजिए। मैं तो ऐसे जजों को, ऐसे जर्नलों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर आपने सियासत करनी है तो फिर इदारे को मत इस्तेमाल करो, इस्तीफा देकर मैदान में आओ, हम तुम्हारे औकात देखते हैं कि तुम्हारी सियासत कर खेलनी है तो सियासत के मैदान में खेलो, बाहर से पत्थर मत फेंको, खेल के मैदान को खराब मत करो। खेल के मैदान को खेल का मैदान रहने दो, आ जाओ मैदान में, तुम्हारी कीमत का पता चल जाएगा कि आप क्या हैसियत है आवाम में। इदारे को इस्तेमाल करते हो, इदारे की क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हो और तुम अपने लाडलू के लिए इस्तेमाल करते हो। ये पाकिस्तान अवाम का है, किसी एक इदारे के किसी लाडले के लिए नहीं बना, इस मुल्क के अवाम के लिए बना है। इसमें कुर्बानियां अवाम की है, अवाम के अलावा किसी की नहीं है। कोई हमारा बाप बनने की कोशिश न करे। नाजरीन, अब हम आते हैं थोड़ा सा फॉरेन फंडिंग केस की तरफ। तो नाजरीन, फॉरेन फंडिंग केस का मामला जो है वो इंतहाई संजीदा और इंतहाई जो है वो संगीन रुख अख्तियार कर गया है और अब तो इसमें आलमी मीडिया भी कूद पड़ा है और अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मामला एक जो है वो अपना यूं समझ लें कि इंटरनेशनल स्कैंडल की सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है और जिसका जो नताइज हैं वो शायद कुछ अच्छे नहीं निकलेंगे। मैं वो बातें नहीं दोहराऊंगा जो इस पिछले 2 रोज़ से मुसलसल चैनल्स पे लोगों को हिफ्ज़ कराई जा रही हैं। मैं सिर्फ चंद हक़ाइक़ बयान करूंगा। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूंगा कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जिस तरह की जो है वो प्रोपेगेंडा की जा रही है या जिस तरह इस मामले को हवा दी जा रही है, बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम इसके पसे पर्दा देखें तो पसे पर्दा का जो मामला है वो ये है कि एक ऐसी हैजानी सी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान को दबाव में डाल के और जो वो करने जा रहे हैं या उनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात या जो रवाबित या जो मामलात जो कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं उनको रोकने के लिए या उनके आगे एक बंद बांधने की कोशिश लगती हैं, क्योंकि जो है वो अपना इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाना है। उन्होंने सिर्फ इतना बताना है कि इतनी ममनुआ फंडिंग हुई, तो जो ममनुआ फंडिंग हुई है वो बहक के सरकार जमा करा दी जाएगी, लेकिन मज़ीद जो इक़दामात हैं वो हुकूमत ने उठाने हैं और उन इक़दामात की जो सिफारिशात हैं वो भी जो है वो इलेक्शन कमीशन करेगा और इस हवाले से वो वफाक को एक वो अपना जो जजमेंट है वो भेज देगा और वफाक उसका तफसील से जायज़ा लेने के बाद जो है वो अपनी जो उनकी होंगी सिफारिशात होंगी या जो भी इक़दामात होंगे, अगर वो समझेंगे कि इमरान खान को, PTI को या उनकी क़यादत को या जो इस फॉरेन फंडिंग में मुलविस हैं या फिर पूरी पार्टी को ब्लैक लिस्ट करने के हवाले से या कलअदम करार दिए जाने के हवाले से या इमरान खान को कलअदम करार दिए जाने से या इमरान खान और उसके वो लोग जो जिनके अकाउंट्स और जिनके नाम इस फॉरेन फंडिंग में केस हुए हैं उनको उनके नाम ब्लैक लिस्ट में डाले जाने से के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट को एक सिफारिशात अपनी भेजेंगे और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करनी है। तो नाजरीन, हैरत की बात यह है कि जो मामला इलेक्शन कमीशन से शुरू होगा वो घूम फिर के सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है और सुप्रीम कोर्ट में जब तक ये हमख्याल जो बेंच है ये मौजूद है तब तक हुकूमत को जितना भी जोर लगाना है लगा ले, होना वैसे भी कुछ नहीं है। ये एक इश्यूज़ हैं
और ऐसे इश्यूज हैं जिन्होंने इससे बड़े इशू को दबा के रखा हुआ है। वो बड़ा इशू ये है कि इस वक्त मुल्क सैलाबी सूरत हाल से गुजर रहा है। बलूचिस्तान डूब चुका है, आधा पंजाब डूब चुका है। सखर बैराज से गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 15 लाशें निकाली जा चुकी हैं और बलूचिस्तान में तो लाशों की कतारें हैं, जिसमें ज़्यादातर मासूम बच्चे हैं। तो नाज़रीन, इश्यूज़ जो हैं वो इश्यूज़ को दबा रहे हैं और इश्यूज़ से इश्यूज़ जन्म ले रहे हैं। पहले सहाफ़त के अक़दार कुछ और हुआ करते थे, अब सहाफ़त का जो बुनियाद है वो भी इश्यूज़ हो गए हैं और यानी वो चूरन जो ज़्यादा बिकेगा वो अपना जो है वो चैनल्स दिखाते हैं, लेकिन वो मामला जो इंतहाई अज़ियतनाक और दर्दनाक हैं, जहाँ जो चीखें सुनने के लिए हमारे कान उन चीखों को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हमारे चैनल्स उनको ज़रा उनसे जो है वो यानी मना है। और वो कुछ इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी, लेकिन जो कुछ हो भी रहा है वो सिर्फ पाक फ़ौज की तरफ से हो रहा है। और हमारी पाक फ़ौज ने किसी भी मुश्किल घड़ी में, किसी भी मुश्किल हालात में, बद से बदतर हालात में, बद से बदतर सूरत हाल में अपने अवाम को तनहा नहीं छोड़ा, ना पहले कभी छोड़ा है, ना आज छोड़ा है। आज भी वो हमारे मुल्क के अवाम के साथ, उन लोगों के साथ जो सैलाब ज़दगान हैं, उनके दुखों और तकलीफ़ों के साथ खड़े हुए हैं और हर तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।